Good afternoon, everyone. My principal sir, my dear teachers, colleagues. Today, the topic of in-house training, that is Google Apps in education. Basically, today we will discuss about how to use some Google applications that is provided. Already you can see when you will click on the home screen or when you open search engine, you can see at the right side of the page there are several apps that have been given. So today we will discuss one by one. So first of all, let's see what is Google Docs. So Google Docs is an online word processor. It is a word processor, but the main thing we are seeing here, that is online. So it is one online word processor included as a part of the free web-based Google Docs editor suite offered by Google, which also includes Google Sheets, Google Slides, Google Drawings, Google Forms, Google Sites, Google Keeps, etc. So बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि ये गूगल डॉक्स जो है वो वर्ड प्रोसेसर है, और वर्ड प्रोसेसर क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये फ्री एक्चुअली है और ये वेब बेस्ड गूगल डॉक्स है एडिटर, जहां पर हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका बेसिक्स क्या है। सो द फर्स्ट इज एडिट एंड फॉर्मेट अ गूगल डॉक। We can edit and format any Google documents or any documents. Here edit and format means we can add any new contents to the documents, or we can change the appearance of the document. That is, we can highlight or underline, change the color, etc. Next one is use styles to format text and to create a table of content. We can also insert into the document some styles of format text, and we can also create a table of contents. We can also insert an image, a table, header, footer, etc. We can also include header, footer, images, tables in our document. Next one is align text. We can align text also, like the appearance of the text from left to right, or from right to left, or from center, etc. These are aligned. टेक्स्ट का अलाइनमेंट मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, या तो लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, या जस्टिफाइड व्यूज में आता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। वी कैन आल्सो प्रिंट any document with the help of printer. Download a document as another file type. The very important thing is that we can also download that document in any other file type also. Suppose we have created a document in MS Word, or Google Doc, that is document type, word processor type. If you want to save it in a presentation, PPT or PDF, so you can do that. So here question arises that why Google Docs? क्यों हम लोग Google Docs यूज करें? ऑलरेडी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने सॉफ्टवेयर है वो तो यूज करते हैं, उसमें वर्ड प्रोसेसर जैसे कि MS वर्ड हम लोग यूज करते हैं, स्प्रेडशीट में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो हम लोग गूगल डॉक्स क्यों यूज करते हैं? सो विद गूगल डॉक्स यू कैन क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइट इन योर वेब ब्राउजर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके कंप्यूटर या सिस्टम में वर्ड प्रोसेसर है या नहीं है, इंस्टॉल आपने करके रखा है या नहीं रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप केवल आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है, आप वेब ब्राउजर अगर यूज करते हैं, तो आप आसानी से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके उसको एडिटिंग वगैरह
आसानी से कर सकते हैं। नो स्पेशल सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको पार्टिकुलरली नहीं चाहिए कि कोई काम अगर हमको करना है तो उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा तभी जाकर के हम यूज कर पाएंगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। इवन बेटर मल्टीपल पीपल कैन वर्क एट द सेम टाइम। जब हम लोग गूगल डॉक्स वगैरह यूज करेंगे, अगर मान लीजिए बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट हमको क्रिएट करना है तो एक ही डॉक्यूमेंट में हम लोग मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम में उस डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। यू कैन सी पीपल्स चेंजेस एज दे मेक देम। जैसे ही कोई पीपल उस कंटेंट में कोई चेंजेस करता है तो आप ऑनलाइन तुरंत देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड एवरी चेंज इज सेव्ड ऑटोमेटिकली। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो एक टीम वर्क जैसे काम करती है, तो वो ऑटोमेटिकली सेव भी होता है। इसमें और भी है, जैसे कि हम लोग राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद उसको पब्लिश भी किया जा सकता है। वो कैसे पब्लिश वगैरह करेंगे आगे हम लोग शॉर्ट में देखेंगे भी। इसके बाद ये सेंट्रलाइज्ड है, आप कहीं भी हैं, कंटेंट कहाँ पे, जैसे कि हम लोग जनरली क्या होता है कि अपने सिस्टम में आप अगर फाइल स्टोर करके रखे हैं और आप वो सिस्टम अगर ले करके कैरी करके नहीं गए तो आप उस कंटेंट को वहाँ पर देख नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। आप कहीं भी अपना आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद अपना वो कंटेंट कहीं से भी देख सकते हैं। टाइमली है, हिस्ट्री है, फैमिलियर लेआउट्स है, ऑथेंटिक है और इसके वर्ल्ड ऑडियंस भी है। गूगल डॉक्स इन योर क्लासरूम। So Google Docs can be used in our classroom. Particularly in Google Apps, there is a separate app that's called Google Classroom. We'll also discuss it later. And how can we use several contents or several documents in that classroom? So the very first is individual writing assignments. We can इस क्लासरूम के हेल्प से किसी स्टूडेंट को अगर हम लोग पार्टिकुलरली असाइनमेंट देना चाहते हैं तो उसको पार्टिकुलरली असाइन किया जा सकता है कोई वर्क जो कि वो करके आपको सबमिट करेगा, और वो फिजिकली सबमिट करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो ऑन नेट ही आपको सबमिट कर देगा वो असाइनमेंट। कोलैबोरेटिव राइटिंग प्रोजेक्ट्स, एक कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो सभी को मिल करके कैसे कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। टर्न ईमेल्स अटैचमेंट्स टू गूगल डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कोई अगर हमारे पास ईमेल सेंड किया है, उस कंटेंट को हमको एमएस वर्ड या डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में अगर हमको यूज करना है, वो भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसमें। और ऐसे क्या होता है कि वहाँ से या तो उसको फिर से देख करके फिर से टाइप करना पड़ता है, वो लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर उससे ओवरकम किया जा सकता है। एंड शेयर रुब्रिक्स विद स्टूडेंट्स। कुछ अगर डिस्क्रिप्शन आपको देना है स्टूडेंट्स को, तो वो भी आसानी से हम एक बार अगर डिस्क्रिप्शन देंगे तो सभी को आसानी से देख पाएंगे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। सो वर्ड प्रोसेसिंग refers to the act of using a computer to create, edit, format, save and print documents. वर्ड प्रोसेसिंग कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे पॉपुलरली हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा एमएस वर्ड। वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और उससे हम कोई भी जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आई थिंक सभी ने तो किया ही होगा। उसमें सिंपली हम लोग सबसे पहले टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद अगर उसमें कुछ एडिट करने की आवश्यकता होती है तो इजीली हम लोग उसमें कर पाते हैं, इन कंपैरिजन टू जो हम लोग कॉपीज वगैरह पे लिखते हैं हैंड से, उसके अपेक्षा। तो एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है, उसको सेव करके हम लोग आसानी से प्रिंट हुए डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। In order to perform word processing, specialized software known as a word processor is needed. ये सब काम करने के लिए हमको कोई स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और भाई गूगल डॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं चीप फीचर एंड एडिटिंग लाइक एनी ट्रेडिशनल वर्ड प्रोसेसर। Suppose we are typing some words or lines, it can be a human error like
स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर, और तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम लोग जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसके नीचे रेड कलर से जिगजैग अंडरलाइन हो जाता है, तो वो वहां से स्पेल चेक भी कर सकते हैं हम लोग। स्पेलिंग चेक करके उसको सुधारा जा सकता है आसानी से। अगर किसी वर्ड या लाइन को हाईलाइट करना है तो हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेटिंग, हेडर फुटर भी हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमें 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सभी में पेज नंबर इंसर्ट करना है, हम लोग या तो हेडर या फुटर से एक बार हम लोग पेज नंबर इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सभी पेज में सीरियली पेज नंबर इंसर्ट हो जाता है। या कोई ऐसा वर्ड या लाइन देना है जो हर पेज में आए, तो उसके लिए हम लोग हेडर या फुटर यूज कर सकते हैं। क्रिएट बेसिक डॉक्यूमेंट्स from scratch or start from a template. Upload an existing file from Microsoft Word. Download documents to your desktop. Choose who can access, view, and even edit your document to collaborate. आप ये एक्सेस दे सकते हैं कि कौन आपके डॉक्यूमेंट को यूज कर सकता है, देख सकता है या एडिट कर सकता है। आप अगर एक्सेस देते हैं कि कोई आपके कंटेंट को केवल देख पाए, उसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए, तो वैसा भी कर सकते हैं। या एडिटिंग पावर अगर देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ईमेल योर डॉक्यूमेंट आउट एज अटैचमेंट, तो आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसको अटैचमेंट लेयर से आप किसी को मेल भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम लोग थोड़ा एग्जांपल लेके या फिर इसको थोड़ा प्रैक्टिकल जैसा करके देख लेते हैं शॉर्ट में, तो और क्लियर होगा हम लोगों को। सो एज यू सी हियर, ये हमारा गूगल का होम पेज जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पर सर्च इंजन जैसे गूगल दिख रहा होगा on the wall. So at the right corner we can see here Google Apps option is given. राइट कॉर्नर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ड्रॉप बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर हमको दिखाई देता है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे यहाँ पर हमें डॉक्स दिख रहा होगा, डॉक्स DOCS, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे। लेकिन ये हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसको यूज करने से पहले हमारा यहाँ पे गूगल में लॉग इन होना चाहिए। जैसा कि यहाँ साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल का गूगल अकाउंट से लॉग इन किया हुआ है, तो ये लॉग इन होना चाहिए तब यूज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं यूज कर पाते। तो यहाँ पर देख सकते हैं नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर एक सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैंक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसमें आप जैसा एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। या फिर कुछ यहाँ पर यहाँ पर पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मेट भी बना हुआ रहता है, जैसे रेज्यूमे का है, लेटर का है, तो इस पे भी क्लिक करके आप खुद सिंपली फॉलो करते हैं। जैसे क्लिक लेटर पे क्लिक करते हैं, इट्स टेकिंग सम टाइम, सो यू कैन सी जैसे लेटर पे क्लिक किया, यहाँ पर योर नेम, एड्रेस, डेट, इस तरह से डियर मिस्टर रीडर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हटा करके अपना नेम यहाँ पर जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं, ठीक है। जो जो जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वो भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक करके और यहाँ पर जो भी हमको जैसा भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा आसानी से किया जा सकता है। तो इस शुरू में ही स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए थे कि इसके लिए हमको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। वेब ब्राउजर हमारे पास रहेगा तो आसानी से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि MS वर्ड में हम लोग करते हैं, यहाँ मोर और लेस लगभग सब सारा काम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे पब्लिक लिखे हैं तो यहाँ पर रेड कलर से अंडरलाइन हो गया, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है मुझे लगता है। इसको राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सजेशन दे रहा है
डिड यू मीन पब्लिक, तो अगर पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो पब्लिक स्कूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मेटिंग वगैरह जो हम लोग बोल रहे थे वो फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसका कलर अगर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन एटसेट्रा। इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो भी किया जा सकता है। तो सपोज हमारा कहीं ऐसा लगा है जहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रोसेसर स्पेसिफिक कोई नहीं है, तो हम नेट कनेक्ट करके आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सब यहाँ पर बहुत सारे, जैसे देखिए यहाँ पर एडिट में देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन व्यू में है, इंसर्ट जैसे कि इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं हम लोग एमएस वर्ड में, उसी तरह से यहाँ भी आसानी से किया जा सकता है। इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर और सर्च ऑन द वेब आल्सो, डायरेक्ट इंटरनेट से सर्च करके भी इंसर्ट किया जा सकता है जैसे। इस तरह से इमेज भी इंसर्ट किया जा सकता है, और इसको आपको बड़ा छोटा अगर करना है तो आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा इसको अब हम लोग अगर प्रैक्टिकल घर में अपने जाके या अपने आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, सब सारा चीज मोबाइल में भी हो सकता है। गूगल में जाकर वहाँ पर ऐप्स में जाएंगे या फिर www.docs.google.com पे जाएंगे, वहाँ पे ये आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्प्रेडशीट। जैसा कि सर बोल रहे थे, तो स्प्रेडशीट सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता क्या है। सो अ स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिनको हमको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखना पड़ता है। सपोज इंफॉर्मेशन ऑफ आवर स्टूडेंट लाइक रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखते हैं। और आई थिंक आप लोग पहले से फैमिलियर हैं, जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सेल्स रहते हैं, और अलग अलग सेल्स यानी रोज एंड कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है, तो उसमें हम लोग स्पेसिफिक रोज में स्पेसिफिक डेटा इंसर्ट करते हैं, और कॉलम में एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाता है। तो वही हम, और उसको स्टोर करने के साथ हम लोग उसको कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं, उस डेटा का एनालाइजेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर सपोज कीजिए कि हमने स्टूडेंट का मार्क्स एंटर किया है, जैसे फाइनल एग्जामिनेशन का मार्क्स, तो उसको हम लोग मैनुअली टोटलिंग ना करके हम लोग वहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लगा करके आसानी से एडिशन भी किया जा सकता है। या फिर सभी का हमारे पास लिस्ट आया है स्टूडेंट का टोटल मार्क्स, तो हम लोग विद इन 10 सेकेंड्स उसमें आसानी से पता कर सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसका आया है, लोएस्ट मार्क्स किसका आया है। इस तरह से उसमें परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, एवरेज भी निकाला जा सकता है इजीली। सो स्प्रेडशीट्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स अवेलेबल विद पर्सनल कंप्यूटर। तो ये बहुत ही पॉपुलर टूल है जो वाइडली यूज किया जाता है। A spreadsheet is generally designed to hold numerical data and short text strings. ये बहुत, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूमेरिकल ज्यादातर डेटा स्टोर किया जाता है, जैसा अभी डिस्कस किया कि स्टूडेंट का मार्क्स हो गया वगैरह। तो और ज्यादा बड़ा यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस या फिर पैराग्राफ इसमें स्टोर करने वाले नहीं करते हैं, ज्यादातर से शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग हम लोग इसमें स्टोर करते हैं इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म समझ रहे हैं, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है उससे। तो इसमें भी गूगल डॉक्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग आसानी से एमएस एक्सेल में जो आप बना करके रखें डेटा, इसको यहाँ पर इंपोर्ट आसानी से किया जा सकता है।
टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रहेगा या ऑडियंस फॉर्मेट में भी रहेगा तो आसानी से उसको इंपोर्ट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरी जगह से गूगल डॉक्स के स्प्रेडशीट में लाना, और एक्सपोर्ट मतलब उसको गूगल डॉक्स से किसी दूसरी जगह भेजना। ओडीएस नहीं नहीं डॉट ओडीएस जो एक्सटेंशन एक्चुअली ओपन ऑफिस एक आता है, इसका जो स्प्रेडशीट जो रहता है उसका एक्सटेंशन ये है। और एक्सेल एक्सेल में जो दिख रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट हाँ टेक्स्ट टीएक्सटी का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का होता है। तो ओडीएस जो है ओपन ऑफिस का जो स्प्रेडशीट है उसका ये फाइल का एक्सटेंशन है। तो तो इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। use formatting and formula editing so you can calculate rules and makes your data look the way you want it, and chat in real time with others who are editing your spreadsheet. तो स्प्रेडशीट जैसा हम लोग बहुत बात कर रहे हैं उसको आसानी से हम लोग दूसरी जगह शेयर भी कर सकते हैं उसको, और एक ही समय में उसी स्प्रेडशीट में मोर देन वन पीपल उसमें आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। सपोज अगर हमको 5 वैल्यू एंटर करना है, कोई 5 फाइल लोग असाइन कर दिए, एक नेम एंटर कर रहा है, कोई रोल नंबर एंटर कर रहा है, कोई किसी का मोबाइल नंबर, तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेटा एक साथ 5 लोग या 5 पर्सन आसानी से उसको कर सकते हैं रियल टाइम में। Embed splits your individual sheets of your spreadsheet in your blog or website also. So इसको भी एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। वैसे ही हम लोग अगेन यहाँ पर जाएंगे, एप्स में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर गूगल डॉक्स दिख रहा है उसके जस्ट बगल में यहाँ पर शीट दिख रहा होगा, शीट्स। सो वी विल क्लिक ऑन दैट। इसमें भी इसी तरह से पहले से प्री फॉर्मेटेड कुछ फाइल्स रहते हैं जिसमें कि टेम्पलेट्स टाइप, जिसमें हमको कोई इंफॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे कैलेंडर वगैरह बनाना है वो सब है, मंथली बजट है, एनुअल बजट है, और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर होगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रूल्स एंड कॉलम्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। सो ये 1 2 लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगेन विल क्लिक ऑन दिस, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डॉक्स के जस्ट बगल में शीट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, टू डू लिस्ट है, एनुअल बजट है, मंथली बजट है, गूगल फाइनेंस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट है, एनुअल कैलेंडर भी हम लोग बना सकते हैं। तो ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा दिखेगा जिसमें कि रोज एंड कॉलम्स बहुत सारे दिख रहे होंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 जो दिख रहा है, ये लेफ्ट टू राइट होता है, रो होता है, और ए बी सी डी ऊपर टॉप में दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे तरफ कॉलम। नीचे आपको सीट 1 यहाँ पर दिख रहा होगा। हम लोग अगर चाहें तो यहाँ से सीट इंसर्ट भी कर सकते हैं, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा सीट तीसरा सीट इस तरह से आता जाएगा। तो वर्कशीट में हम लोग मोर देन 1 सीट्स ऐड कर सकते हैं, तो वो पूरा मिला करके वर्कबुक बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी डेटा यहाँ पर जैसे नेम है, चाहे यहाँ पर रोल नंबर अगर करें, यहाँ पर नेम अगर करें, क्लास अगर किया जाए, तो इस तरह से डेटा यहाँ पर हम लोग ऐसे 1 2 3 इस तरह से कर सकते हैं, और नेम जो भी रहेगा ABC बार और क्लास जो भी करना होगा।
इस तरह से डेटा आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इसको मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पर हम एक लेते हैं मार्क्स, हालांकि ऐसे ऐड करना, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हालांकि जैसे एक नेम है ABC तो उसका मार्क्स लेफ्ट टू राइट देना होगा, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, इस तरह से। इसको अगर हमको टोटल करना होगा तो यहाँ पर हम टोटल लिख के टोटल टाइप करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऐड करने के लिए। इसमें इस सेल्स में अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एक फंक्शन होता है सम और एक रेंज देना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर सजेशन ऑटोमेटिकली दे रहा है। देखिए हमने यहाँ पर SUM D2 to D4 किया, ये जो सेल है ये D2 है, D और यहाँ 2, D2 का इंस्ट्रक्शन और D4 तक इसको ऐड किए तो यहाँ 155 दिख रहा है। अगर यहाँ पर किसी सेल में हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे 45 है, इसको अगर 50 किए, लेकिन नीचे ऐड करना थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप एंटर कीजिएगा देखिएगा टोटल जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। इसको भी यहाँ से शेयर किया जा सकता है, शेयर जैसा यहाँ पर दिख रहा है, इसको शेयर करेंगे तो यहाँ पर उस फाइल का नेम सेव करके और जिसको अगर चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं। लग रहा है रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है, एनीवन विद द लिंक, कॉपी लिंक करके इसको व्हाट्सएप में शेयर करेंगे तो सभी कोई इसको देख पाएंगे। यहाँ कुछ अपडेट होगा तो सभी कोई कर पाएंगे, अगर एक्सेस देंगे तो वो भी उसमें कुछ एडिट कर पाएंगे। इसको अभी नहीं रहने देते हैं, और अगर हम चाहें तो किसी को डेमो या कुछ इस तरह से बताना है तो हम जैसा कि हम लोग यूज करते आ रहे हैं ये गूगल मीट ऐप, उससे यहाँ से कनेक्ट होकर के एक साथ 10, 20, 100 जितने भी हैं तो उसको ऑनलाइन में डिस्कस किया जा सकता है। इसमें भी जितना भी MS Excel के जितने भी फॉर्मेट के ऑप्शंस रहते हैं वो सब भी आसानी से कर सकते हैं। इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, इसमें बॉर्डर भी दिया जा सकता है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे बॉर्डर्स और बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर्स चारों तरफ दिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रिंट यहाँ दिख रहा है आपको अलग अलग सेल्स, लेकिन जब प्रिंट करते हैं तो ब्लैंक आ जाता है, तो सबसे पहले हमको बॉर्डर देना पड़ता है, इसके बाद इसको प्रिंट आसानी से किया जा सकता है। और ये जितने भी हम कर रहे हैं ये सारा हमारे गूगल ड्राइव में ये ऑटोमेटिकली स्टोर होता है, तो ये हमको ये डरने की आवश्यकता नहीं है, बॉदर करने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ तो कर रहे हैं फिर घर जाके कैसे करेंगे। यहाँ से सिस्टम ऑफ कर देंगे और अपने घर में जाके वहाँ गूगल ड्राइव में देखेंगे, दूसरे सिस्टम से भी देखेंगे, तो वो ये सारा ऑटोमेटिकली वहाँ सेव रहता है, वहाँ से भी इसको देखा जा सकता है आसानी से। तो बाकी डिटेल now next one is presentation. We'll discuss a type of software that is presentation software, sometimes called presentation graphics also, because इसमें हम लोग ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सारे चीज यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको ग्राफिक्स भी कहा जाता है। Is a category of application program used to create sequence of words and pictures that tell a story of or help support a speech or public presentation of information. जैसा कि ये अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अगर किसी भी टॉपिक पे अगर किसी को उसके साथ डिस्कस करना है तो हम लोग उसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। तो एक सीक्वेंस में देखिए हर एक, और इसमें बहुत सारे स्लाइड्स रहते हैं, तो 1 by 1 स्लाइड्स आते रहते हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको आई कैची बनाना चाहिए ताकि सामने से जो देख रहा है उस पर अट्रैक्शन हो उसका,
तो इस तरह से प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। तो इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर है। गूगल डॉक्स में एक प्रेजेंटेशन आता है, इसमें भी शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को अपने फ्रेंड्स या कोवर्कर्स के साथ। और इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, पहले से आपका कोई प्रेजेंटेशन है उसको भी इंपोर्ट किया जा सकता है। इजिली एडिट योर प्रेजेंटेशन, हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको आसानी से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, कुछ उसमें सुधार करना है, कुछ ऐड करना है या उसमें से कुछ हटाना है तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। उसमें हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोज इंसर्ट कर सकते हैं और हम अपने स्लाइड को आसानी से उसमें उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं हमारा जैसा प्रेफरेंस है उसके हिसाब से। एंड अलाउ रियल टाइम व्यूइंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑनलाइन फ्रॉम सेपरेट रिमोट लोकेशन। अगर हम उस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो हम रिमोटली अगर किसी को दिखाना चाहते हैं तो इजीली उसको शेयर करेंगे और अगला उसको आसानी से देख पाएगा। पब्लिश एंड एम्बेड योर प्रेजेंटेशन इन अ वेब पेज अलाउइंग एक्सेस टू अ वाइड ऑडियंस। ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच पाए इसलिए हम लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे लिंक दे सकते हैं। तो इसको भी शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं। Again, we will go to the you can see here slides apps is given, so we'll click on that slides। यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड बहुत सारे आपके प्रेजेंटेशन रहते हैं जिसको आसानी से आप क्लिक करके उसको फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर फोटो एल्बम दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो पहले से ही प्री फॉर्मेटेड आपका टेम्पलेट जैसा रहता है। इसमें आप यहाँ पर जितने भी फील्ड्स दिख रहे हैं, सपोज द वेरी फर्स्ट फिगर और पिक्चर हियर, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट होल्डर आता है, इसको आप यहाँ से हटा करके अपना दूसरा फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको भी हम अपने से इसको एडिट करके यहाँ पर अपना जो लिखना है आसानी से टाइप करके इसको सेव कर सकते हैं। बहुत सारे स्लाइड्स रहते हैं। And we can also take a blank slide। यहाँ पर हम लोग ब्लैंक स्लाइड लेकर के यहाँ कुछ टॉपिक कर देना चाहते हैं, जैसे साउथ पॉइंट, पब्लिक स्कूल। इसको फॉर्मेट वगैरह करना चाहें तो आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसका कलर अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको हाईलाइट भी किया जा सकता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं जिसमें हम कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज नहीं कर रहे हैं, केवल इंटरनेट कनेक्शन है और लॉगिन किया हुआ है। गूगल का जितने भी ऐप्स है उसकी हेल्प से सब किया जा रहा है। इसमें प्लस साइन पे क्लिक करने पे नया स्लाइड आ जाएगा। यहाँ पर कुछ अगर कंटेंट अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करके यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे तो जैसे सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, इस तरह से कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। इस तरह से लिस्टिंग किया जा सकता है, उसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। थीम वगैरह अप्लाई करना चाहें तो थीम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे थीम्स यहाँ पर दिए हुए हैं।
इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। देयर आर 9 लेआउट्स, जनरली 9 लेआउट्स रहते हैं, उसमें से किसी को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। ट्रांजिशन, जैसा कि ट्रांजिशन, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन क्या है, एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड कैसे अपीयर होगा, वो ट्रांजिशन यहाँ पर होता है। तो जैसे फर्स्ट स्लाइड है, उसके बाद ट्रांजिशन करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन हैं, जैसे डिजोल्व है, फेड है, स्लाइड फ्रॉम राइट है, और स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट है, या फ्लिप है, और क्यूब है। एक सेलेक्ट करके देखते हैं, उसका प्रीव्यू करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से आता है, अपीयर होता है। ये है स्लाइड ट्रांजिशन। सो वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम। स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट, प्रीव्यू करके देख सकते हैं, इस तरह से अपीयर होता है, लेफ्ट से राइट तरफ आ रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का एनिमेशन। एनिमेशन है कि वो पार्टिकुलर कोई, अगर हम टेक्स्ट या कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसको एनिमेट कर सकते हैं, यानी मूवमेंट उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड एनिमेशन है, ऑन क्लिक है, फेड इन और व्हाटएवर, बहुत सारे हैं, जूम इन और जूम आउट। सो क्लिक ऑन जूम आउट, प्ले करके देखते हैं। देखिए वो जूम इन ऐसे होगा, है ना। ये स्लाइड, सॉरी, ये आपका है एनिमेशन। तो दो यहाँ पर है, एक है स्लाइड ट्रांजिशन और दूसरा एनिमेशन। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। ट्रांजिशन मतलब बहुत सारे स्लाइड्स रहेंगे तो एक स्लाइड से दूसरा कैसे आएगा, वो है। और एनिमेशन उसी स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उसको कैसे हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, वो आता है। और इसको अगर हमको स्लाइड शो करना है तो ऊपर पर ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन में आ जाता है। इसके बाद इस तरह से होगा। दो ही था इसे देखना है, आप नेक्स्ट ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गूगल फॉर्म। ये हम लोग जब लॉकडाउन सिचुएशन जिस समय था उस समय हम लोग इसको वाइडली यूज किए थे, अगर हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं तो। सो गूगल फॉर्म इज अ फ्री ऑनलाइन सर्वे एंड फॉर्म builder that's part of the Google Workspace suite of tool. The application has a simple drag and drop interface that makes creating surveys quick and easy. अगर हमको गूगल फॉर्म में अगर कोई सर्वे करना है या कोई इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाइक कुछ अगर क्विज कराना है या फिर कोई एग्जाम ही छोटा देना है, तो आसानी से हम लोग गूगल फॉर्म का यूज करके और ये कंडक्ट कर सकते हैं। सो गूगल फॉर्म कैन बी एक्सेस थ्रू एनी वेब ब्राउजर ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस ऑल्सो। गूगल फॉर्म जो है कोई भी वेब ब्राउजर हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक मोस्टली हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं क्योंकि हम लोग मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं, गूगल क्रोम। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउजर है अभी लेटेस्ट, जिसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम है एज। एज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे वेब ब्राउजर है, किसी में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या मोबाइल डिवाइस में यूज करें या कंप्यूटर सिस्टम में भी हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा हम लोग एक डेमो जैसा लेकर के देख लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पर हमको एक फॉर्म ऑप्शन दिखता है, फॉर्म्स। वी क्लिक ऑन दैट। इसको मोबाइल में भी आसानी से, जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको मोबाइल में भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर पहले से भी कुछ कुछ प्रीडिफाइंड यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर ब्लैंक भी दिया जा सकता है। ब्लैंक पे अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं।
यहाँ आपको दिख रहा है स्टाइल और टेक्स्ट। यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर टाइटल फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने हिसाब से इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर हेडिंग अगर हमको अपने स्कूल का नाम देना है तो यहाँ पर हम लोग एंटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ देना चाहें किस ये क्या चीज़ का सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि अटेंडेंस वगैरह भी हम लोग ऑनलाइन जब ट्रेनिंग करते हैं तो अटेंडेंस इसी तरह से गूगल फॉर्म में आता है। वो जितना भी है सब यहीं से उसको आसानी से बनाया जा सकता है। फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि क्विज है या फिर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं छोटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो हम लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसको बोल्ड भी किया जा सकता है, इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया था कि कस्टमाइज भी किया जा सकता है थीम को। बहुत सारे ऑप्शन है दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अनटाइटल्ड क्वेश्चंस, यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन एंटर कर सकते हैं, जैसे योर नेम। योर नेम ये क्या होता है, कभी कभी ऑटोमेटिकली जैसे नेम जैसे वो देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर नेम है, तो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट यहाँ पर नीचे दिख रहा है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शॉर्ट आंसर है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हम लोग मोर देन वन और टू लाइंस भी लिखा जा सकता है, लेकिन नेम जो है शॉर्ट में ही रहता है। हम लोग शॉर्ट आंसर ऑप्शन करेंगे तो जो रिस्पॉन्स करेगा उधर से वो शॉर्ट आंसर यहाँ पर दे सकता है। और अगर इसको हम लोग रिक्वायर्ड अगर ऑन करते हैं, रेड या बटन जो है इसको अगर ऑन कर देते हैं तो वो उसको नेम एंटर करना आवश्यक हो जाएगा, उसको नेम वहाँ पर एंटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स भी है, रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको दिख रहा है नेक्स्ट, अभी 0 रिस्पॉन्सेज दिख रहा है क्योंकि इसको हम किसी के पास शेयर नहीं किए। उसी तरह से सेटिंग ऑप्शन है, इसको बता रहे हैं कि इसको मेक अ क्विज, इसको क्या क्विज बनाना चाहते हैं, इसको अगर ऑन करते हैं तो ये क्विज जैसा हो जाएगा। रिस्पॉन्सेज आर मैनेज हाउ रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो अगर ईमेल एड्रेस आप अगर इसको कलेक्ट करेंगे तो कोई भी इसको जब लॉगिन करके रखेगा तभी वो इसको एक्सेस करता है, तो उसका ईमेल आईडी अपने आपके पास स्टोर हो जाएगा। अगर रिस्पॉन्स को एडिट करने का ऑप्शन देना चाहते थे तो हालांकि देते नहीं। और यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट 1 रिस्पॉन्स। कभी कभी क्या होता है किसी को कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फिर से दूसरा दोबारा रिस्पॉन्स कर देते हैं, फिर से उसमें कुछ फिल करके फिर से उसको सबमिट करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक यूजर एक ही बार रिस्पॉन्स कर सके, उसको अगर ऑन कर देंगे तो दोबारा अगर जैसे फिल करके सबमिट करेगा वो उसके पास मैसेज आएगा आपने ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर दिया है। उसके लिए दूसरा दिमाग लगा सकता है कि दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन करे और तब फिर रिस्पॉन्स करे तो वो सबमिट हो जाएगा। अगर मेन क्विज अगर करते हैं तो यहाँ पर ग्रेड रिलीज करने का ऑप्शन आ जाता है कि इमीडिएटली जैसे वो सबमिट करेगा उसके पास तुरंत व्यू योर स्कोर करके आ जाता है ऑप्शन। हम लोग याद करें जब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम जब देते थे, सॉरी ऑनलाइन ट्रेनिंग में असेसमेंट कभी होता था तो उसमें व्यू स्कोर का भी ऑप्शन आ जाता था, देख लेते थे कितना सही है कितना गलत है। 45 डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू है, हम लोग 0 या 1 कितना एक क्वेश्चन को कितना मार्क्स असाइन करना चाहते हैं वो स्क्रॉल करके ऐसे कर सकते हैं, टाइप भी करके किया जा सकता है। इसके बाद प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरा आ गया, दूसरा ऑप्शन, पहला योर नेम आ गया, दूसरा क्वेश्चन
जैसे नेम के बाद सपोज नेम के बाद क्या दें, मोबाइल नंबर, सीटी। इसमें देखिए ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर टाइप करेगा, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर से इसको भी रिक्वायर्ड करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, इसको दो पेज में भी चेंज कर सकते हैं। एक ऐसा रहेगा, पहला जो पेज आएगा वो ऐसा रहेगा जिसमें इंफॉर्मेशन फिल करेगा, और सेकंड पेज में फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसके लिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ऐड सेक्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से सेक्शन 2 नीचे दिख रहा है आपको। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में इन्फो हो गया, इंफॉर्मेशन, और सेकंड सेक्शन में अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन रहता है डिस्क्रिप्शन, प्लस साइन करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन में अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। चार्ल्स बेबेज और कुछ दे सकते हैं यहाँ पर। स्पेलिंग एल ए, इतना हम लोग ऑप्शन चाहे दे सकते हैं। आंसर के लिए दे सकते हैं, कौन इसमें सही होगा तो इसको क्लिक कर देते हैं और टर्न करेंगे। तो अपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट हो जाएगा, इसमें हमको इवैल्यूएट करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम क्या करते हैं, सेंड अगर करेंगे, जैसे किसी के पास ले जाए तो इसको हम लोग ईमेल भी दे सकते हैं, या फिर लिंक भी यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक आ जाएगा। इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है, शॉर्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इसको व्हाट्सएप ग्रुप या किसी में भेजा जा सकता है। तो करें या फिर आगे करके देखा जाए, या फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करके इसको व्हाट्सएप जैसे ओपन करके वहां पर अगर सेंड करते हैं, उस पर क्लिक करेगा तो ओपन हो जाएगा। इस तरह से किया जा सकता है। The last topic, that is Google Classroom. Google Classroom is a free blended learning platform developed by Google for educational institutions that aim to simplify creating, distributing and grading assignments. तो ये Google Classroom जो है एक ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि आसानी से सिंप्लीफाई क्रिएटिंग करके और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं
और इसमें ग्रेडिंग असाइनमेंट आसानी से किया जा सकता है। इसका प्राइमरी पर्पस ऑफ Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students. तो इसका मेन यही पर्पस है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में आसानी से कोई भी फाइल्स वगैरह है या कोई असाइनमेंट है स्टूडेंट सबमिट करना चाहता है, वो जब तक स्कूल में फिजिकली आकर के सबमिट नहीं करता है हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आसानी से टीचर अगर चाहे तो कोई असाइनमेंट को इजीली स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट आसानी से उसको ऑनलाइन ही सबमिट करेगा और टीचर आसानी से चेक कर पाते हैं। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम आज वो यहीं पे समाप्त करेंगे। You can see a classroom option, apps. So click on classroom. You have to log in first of all. So two options has been given. The very first is create class and second one is join class. So if you want to create a class, you have to click on create class and students will click on join class. So we'll click on first of all create class. You have to accept the next. The very first option is you can see class name and it is required. So you click, suppose we write class 10. And a section we can also A and B. And the subject suppose IT and room is 1. So we'll click on create. It's a creating room class. Yes, you can see here class has been created, and we can customize these also. You have we have to click on customize several select photos. We click on select photo, and according to हमारा जैसा class है उसके हिसाब से हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे IT का तो पहले यहाँ पर इसको क्लिक कर लिए, select class name, so it will change to this. You can click on any theme color also and click on save. So we can see here the class code has been given. You have to share this class code. इस class code के माध्यम से ही कोई स्टूडेंट जो है इसमें ज्वाइन कर पाएगा। जब वो ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेगा तो उसको वहाँ पर एक एक्सेस कोड मांगता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी क्लास इनवाइटली, कॉपी क्लास कोड लिंक बना के भी दे सकते हैं, उस कोड को भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो अगर इसको कॉपी करके हम लोग या व्हाट्सएप या कहीं पे मेल सेंड करेंगे तो वो ओपन करेगा क्लासरूम और वहाँ पर ज्वाइन क्लिक करने के बाद कोड या फिर लिंक पे क्लिक करेगा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर वो फिर ज्वाइन हो जाता है। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं सर। आई डोंट थिंक कि इसमें लिमिट नहीं करता है। So स्क्रीन के बगल में क्लास वर्क यहाँ पर दिख रहा है, क्लास वर्क पे क्लिक करके यहाँ पर हम लोग क्लास वर्क क्रिएट कर सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम लोग जितने भी गूगल फॉर्म है, गूगल का जो सीट है ना, इसके बाद
गूगल डॉक्स है, वो सारे यहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए सबसे लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट है आप आसानी से यहाँ पर लेकर के और इसको असाइनमेंट के तौर पे उसको सेंड किया जा सकता है। सो असाइनमेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो असाइनमेंट का आ जाएगा ऑप्शन। अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया, उसको यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है और वो असाइनमेंट डायरेक्ट स्टूडेंट के पास चला जाएगा, तो उसको फिर वहाँ से वो रिस्पॉन्स कर सकता है। Today we created this untitled form और प्रेजेंटेशन भी क्रिएटेड और फोटो एल्बम, ये सारा चीज़ यहाँ दिख रहा है। इसमें से किसी को क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पर, तो वो अब जो भी उस कोड के माध्यम से ऐड हुआ है वो आसानी से इसको देख पाता है और उसको रिस्पॉन्स कर पाएगा। इस तरह से हम असाइनमेंट दे सकते हैं, क्विज असाइनमेंट बना सकते हैं, क्वेश्चन सेंड किया जा सकता है, कुछ स्टडी मटेरियल्स आप देना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, सारा चीज़ यहाँ पर दिया जा सकता है। और जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जैसे टीचर्स दिख रहा है, साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, जो भी लॉगिन इस नाम से करेंगे वो दिखेगा और जितने भी स्टूडेंट्स ऐड होंगे नीचे दिखेंगे, उसकी लिस्ट पूरा दिखेगा। तो अब जैसे अभी स्ट्रीम हो रहा है, कोई भी अगर कोड इंटर करता है तो वो इसमें आ जाएगा और जो असाइनमेंट वगैरह है आसानी से इसमें सबमिट कर पाता है। अगर इसको हमको डिसेबल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको टर्न ऑफ कर देंगे। टर्न ऑफ कर देंगे तो अब इस क्लास में कोई एंटर नहीं कर पाएगा। अगेन अगर हमको इसको फिर से स्टार्ट करना है तो हमको सेटिंग में जाना होगा और इसको फिर से ऑन करना होगा। ये यू कैन सी मैनेज मोबाइल कोड, इट्स टर्न ऑफ, विल क्लिक ऑन इसको टर्न ऑन करेंगे। इसको शेड्यूल भी किया जाता है कभी कभी, टाइमिंग शेड्यूल करके, सॉरी जो असाइनमेंट वगैरह हम लोग देते हैं पहले से ही उसको अपलोड कर देंगे और टाइम शेड्यूल दे देंगे, जैसे 3 o'clock या 3 PM या 4 PM, तो ऑटोमेटिकली वो 3 या 4 बजे स्टूडेंट्स को लिखना शुरू हो जाता है। इस तरह से किया जा सकता है। We can mention the due date also. ड्यू डेट देंगे या आपको इतने टाइम तक सबमिट करना है। तो ये कुछ शॉर्ट्स में हमने इसको डिस्कस किया। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, कुछ त्रुटियां भी रही होंगी उसके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।